All right. So on Sunday, I had started at 9:25 for just a basic purpose is to reach out to y'all and just try and get some changes going. There is enough data out there. What is to be done in COVID? What is not to be done? We have just started this small attempt to first of all reassure you, and secondly, if possible, boost your health at home. As you can see, Dr. Vinod Mehta has joined us today. Hello. So let me just start with one very simple thing. क्या आपको पता है कितने हजारों बैक्टीरिया, वायरसेस, parasites, helminths, fungi, toxins, poisons, literally lakhs of these substances are out there जो आपको बीमार कर सकते हैं. और ये अभी से नहीं, कई टाइम से है. Same way, body में internal hormones, so many other functions which are there, they are on a very delicate balance. In Ayurveda, what do we call them? Actually, we call it Bahya and Abhyantar. Bahya means any type of infection coming from the out sources, and the method what are within yourself with your food and diet and all, and how it works on your body's system. In spite of all of this happening, uh, फिर भी आप 365 दिन तो कभी बीमार नहीं रहते हैं. यू आर फ्रेश, आप फाइन है, आप ठीक हैं. बॉडी का डिफेंस सिस्टम बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अच्छा है, एंड यू हैव टू फोकस ऑन दैट. सो लेट्स गेट इनटू इट स्ट्रेट अवे एंड लेट्स सी व्हाट वी कम अप विद. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉडी के डिफेंस सिस्टम में सबसे पहला और सबसे कीमती ऑर्गन है स्किन. Skin works as a barrier. Skin works as a compartment between the entire external environment and the internal. And skin के बाद जो डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो हम डेप्थ में डिटेल डिस्कस करेंगे. So let us just start with skin. In these circumstances, what are the precautions we can take for skin? For precautions, so the skin के लिए सबसे पहले आयुर्वेद का जो मेन प्रिंसिपल है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम. जो हेल्दी है उनकी हेल्थ को हमें मेंटेन करना है, एंड देन आतुरस्य रोग प्रशमनम च कि जो बीमार है उनकी बीमारी का हम इलाज करेंगे. तो उसके लिए स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम के लिए जो भी स्किन के लिए जितना भी हम कर सकते हैं हमारी स्किन के लिए उतना हमें जरूर से फॉलो करना है. सबसे पहले आप तो रोज सुबह शाम देख रहे हैं कि बार बार पानी से हाथ धोना है, बाहर जाके आएंगे तो मुंह धोना है, स्किन का हाइड्रेशन अपने को मेंटेन रखना है. ड्राई स्किन होगी तो कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज करना है, और ऑयली स्किन होगी तो फेस वॉश वगैरह यूज कर सकते हैं. लेकिन आई विल प्रीफर कि जो आर्टिफिशियल फ्लेवर वाले जो फेस वॉश वगैरह हैं उसके बदले हम जो भी नेचुरल हो वो लेंगे तो ज्यादा अच्छा है. Okay, so ये face wash में there are many types of face wash and most of them are sold as herbal face wash. So what would you say about the herbal face wash? Yeah, there are many face washes, strawberry, orange, lemon. लेकिन ये सब लगाने के बदले उनको खाओ, वो लगाने के लिए नहीं होते हैं, खाली फ्रेग्रेंस होता है. Yes, so I agree. And if there has to be a medicated face wash, then consult a dermatologist. If Dr. Meet and Dr. Grishma have joined us, they are our main dermatologists whom we interact with. So, well, anyway, so moving on, skin, as I said, is an important barrier. Mucous membrane of the various orifices. तो ये स्किन का जो बैरियर है, हम उसे कैसे काउंटर करते हैं? दो वॉलेंटरी मैकेनिज्म से हम इस बैरियर के इर्द गिर्द जाके वॉलेंटरीली हम कोई चीज अंदर इंट्रोड्यूस कर से हैं. नंबर वन, सांस, so from the nose. Number two, from the mouth. The other openings are more either as a special sensory function or for excretion. So let us take this one by one. And ऐसा नहीं है कि किसी ने छींका तो आपको immediately infection होना ही होना है. Otherwise, the entire country of India would be actively infected with tuberculosis or died thousands of years ago with flu. क्या आपको पता है what do you say? कोई भी छींकता है तो सबसे पहली चीज आप क्या कहते हैं? Bless you. Bless you. क्या आप लोग जानते हैं bless you क्यों कहते थे? 250 साल पहले इन्फ्लुएंजा वायरस का एक ऐसा ही एपिडेमिक आया था जैसा हम अभी देख रहे हैं. तब इन्फ्लुएंजा यानी कि जुकाम, सादा जुकाम होते से ही people used to die. We used to lose them. And that is why it came that bless you. This is what we are facing now also.
This is a respiratory infection which is coming in, infecting, and in 15% people, it is progressing to symptomatic or serious disease. 85% are fine. तो आप चिंता ना करें. नाक में जो बैरियर्स हैं उसे हम 4 कैटेगरीज में वी कैन बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ द नोज. सो एरेशन, हाइड्रेशन, lubrication and filtration. So sir, aeration, what do we do about that? एरेशन में तो सब जानते हैं, रोज सुबह शाम करते भी है. जो प्राणायाम, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, इनहेल करना, होल्ड योर ब्रेथ एज मच एज यू कैन एंड एक्सहेल करना. इनहेल एक्सहेल के जितने भी वेरिएशन है आप कर सकते हो. लाइक पहले आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लीजिए, राइट नोस्ट्रिल से छोड़िए, राइट नोस्ट्रिल से सांस लीजिए, होल्ड एज मच एज यू कैन, लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़िए, दोनों नोस्ट्रिल से एक साथ लीजिए, जितना हो सके उतना लंग्स में भर के रखिए और फिर धीरे धीरे एक्सहेल थ्रू माउथ. So is this the basic pranayam? This is the basic pranayam, and is basic pranayam is definitely very authentic and it's very helpful. So this was about aeration. I think yes, I think this is a fairly useful test. Even in allopathy, we believe breath holding, inhalation, exhalation. So depending on the type of disease, we tell you that during the breathing exercises, आपको कितना रखना है. In pulmonary function test, we measure the expiratory force, expiratory volume, etc. Also. Secondly, let's talk about lubrication. Lubrication, when the nasal passage gets dry, and if you want to put it lubricate it with some, either सबसे बेस्ट तो उसके नॉर्मल सलाइन है, जो नमक का पानी के नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स आते हैं, ये डाल दीजिए तो उससे भी आपका पैसेज लुब्रिकेट हो जाएगा. दूसरा, आयुर्वेद में काफी तरह के तेल बताए गए जो नाक में डालने के लिए. अणु तेल है, षडबिंदु तेल है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन, अगर तिल का तेल भी घर में हो तो आप उसको ल्यूकवार्म करके 2-2 ड्रॉप दोनों नोस्ट्रिल में डाल करके ऊपर खींच सकते हैं. घी, देसी घी हो, घर का बना हुआ घी हो, गाय का घी हो, वो भी 1-1 ड्रॉप डाल करके आप उसे इनहेल कीजिए, होल्ड कीजिए, धीरे धीरे गले में आ जाएगा. दैट विल लुब्रिकेट एंटायर. So my allopathic friends will know there is a condition which we often discuss, rhinitis medicamentosa. So over drying of the nostril lining is also one of the barriers to a good immune response. So ये एक जरूरी है. Third, we'll come to filtration. So filtration के लिए there are coarse nasal hair and there are fine cilia, the microcilia of the nose. So both are important. Any basic tips to maintain this filtration? फिल्ट्रेशन तो अभी ये भी आप सेम रोज सुबह शाम सुन रहे कि तो मास्क पहनना है. सबसे पहले मास्क रखेंगे तो अपन आप सामने वाला कोई किसी का भी इन्फेक्शन आपके बॉडी में तुरंत नहीं जाएगा. दूसरा, घर में अगरबत्ती वगैरह लगाते होंगे, धूप करते होंगे, तो वही नहीं करना है, ताकि एक्स्ट्रा स्मोक जा करके इनहेल अपन करते हैं. एरोसोल्स जो सेंट पाउडर परफ्यूम अंडर आर्म्स लगाते हैं, दैट यू शुड अवॉइड. Yeah, I think aerosols is a big problem even with asthma. So we have a question. Will coconut oil do for nashium? Definitely yes. Coconut is also helpful. Okay. And also basic things like don't blow your nose too often, don't put your finger and don't pick your nose, etc. This If also you can put the finger, it really very fun, enjoyable. लेकिन उसको मुंह में नहीं डालना पीछे. और नाक में उंगली डाल के कान में तो बिल्कुल मत डालना, यहाँ का इन्फेक्शन यहाँ जाएगा. Moving ahead, finally we come to the hydration. Now hydration is an important thing. Correct. I firmly stand by hydration. So hydration is of 3 types. Number 1 is normal temperature hydration, जो नेबुलाइजर में सादा पानी भी आप नेबुलाइज कर सकते हैं. वार्म वाटर हाइड्रेशन विच इज स्टीम इनहेलेशन. एंड थर्डली इज डायरेक्ट वाटर विच इज जल नीति. व्हाट डज आयुर्वेद से अबाउट स्टीम इनहेलेशन? स्टिमुलेशन, डेफिनेटली स्टिमुलेशन क्या है, लोगों को पैसा नहीं लगता इसलिए उसकी वैल्यू नहीं है. अगर घर का एक छोटा डिब्बे का भी स्टिमुलेशन का अगर 100 रुपया चार्ज करेंगे तो उसका जितना इफेक्ट उतना मेडिकेशन का भी नहीं है. सो स्टिमुलेशन डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल. जल नीति के बारे में आप लोग जरूर यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं. जल नीति में एक नोस्ट्रिल के अंदर पानी डाल के दूसरे नोस्ट्रिल से निकालते हैं, तो थोड़ा सा ल्यूकवार्म पानी लेते हैं, उसमें जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड यू कैन डू दैट प्रोसेस एंड इट्स एक्सीलेंट. So basically for the children also, the nasal saline drops and steam inhalation, आप bathroom में थोड़ा steam up करके the mother can hold the baby in the hand, you can sing, make the baby cry a little because they'll inhale. That is very useful. Nose forms one of the most important barriers to immunity, तो इसमें आप ध्यान दें. One more thing, lot of preparations are there जिसमें mint और menthol बहुत strong रहता है. Correct. So should we avoid that because a lot of my patients get redness and allergy when they do that? It depends upon person to person. Many people they love inhalation. Vicks जेब में रखे घूमते दिन भर सुनते रहते हैं. So depends upon person to person. लेकिन उसके लिए I'll show you 2 basic excellent things. अजवाइन घर में होती है, थोड़ी सी अजवाइन आप तवे के ऊपर सेक लीजिए और उसको एकदम पतले कपड़े में पोटली बना लीजिए. दैट इनहेलेशन एक्सीलेंट. अगर वो नहीं है तो केवल 2 लौंग को भी हल्का सा पीस लीजिए और उसको कपड़े में बांध के अगर वो भी अगर आप सुनते रहेंगे
It works excellent. So what we have done is that छोटे बच्चों के लिए or those with a sensitive system, like I have a sensitive system, so if it is too powerful, rather than smelling that directly, we rub it onto the hand or to the surface, and you can use it indirectly. So वो भी help करता है. So there are a lot of very strong menthol based out there. Don't use those, like Okay, Carvol Plus, etc. Don't use those. Better to use the milder ones. So this was about the nose as well as the. Now let's come to the lungs. So the next step in immunity is lungs. Lungs के लिए आपको क्या करना है? लंग्स के लिए अक्षय कुमार को फॉलो करना है. You have to basically lungs की इम्यूनिटी का ध्यान तो एक्चुअली कोरोना रख रहा है. जितने लंग फेलियर्स और निमोनिया कोरोना के वजह से नहीं है, उससे ज्यादा तो पोल्यूशन के वजह से होते थे, स्ट्रेस के वजह से होते थे. No cars on the road, zero. There are no cars on the road, and that's that. So I think that's beautiful. So lungs we'll just skip. Let us save time. We've already wasted a lot of our guests' time. So let's just move ahead. Next, now I will come to the mouth. Voluntarily हम mouth में काफी चीजें डालते हैं. Oral health के लिए, I think everybody knows, clean your teeth twice a day, blah blah blah. I will not bore you all with that. Let us talk about something relevant. Is there something which we can do, because gingivitis is on the rise? So for gums, is there something nice in Ayurveda which I can use? Ayurveda has it's mentioned a process called गंडूश. गंडूश मतलब कुल्ला करना. कुल्ला करने में थोड़ी थोड़ी देर में आप गर्म पानी से कुल्ला कर सकते हो. अगर भर के रखना चाहते हो तो मुंह में गर्म पानी भर के रख सकते हो. उसी तरह तिल के तेल का भी बहुत महत्व बताया गया. तिल का तेल मुंह में रख के भर के रखना है और थूक देना है. बट इफ यू पीपल आर कोलेस्ट्रॉल फ्री, देन गर्म पानी इज आइडियल. और उसके लिए थोड़ा थोड़ा गर्म पानी, जैसे भी बताया जा रहा है कि हर घंटे में थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीते रहना चाहिए. It's very ideal. Yeah, as we discussed in the last video that rather than drinking 1 liter in the morning, 1 liter in the night, regular hydration will be a little more. It's needed. It's needed, yeah. So that is for the gum health. Keep your teeth clean. Main mouth health के लिए कचरा मत डालो. And अगर कचरा डाल रहे हो तो फिर you should remove it. Gargles. Now gargles, I would advise, don't use alcoholic gargles like Listerine, etc. If you use them, please उनको dilute कीजिए. There are certain non-alcoholic chlorhexidine and betadine gargles available. जो भी betadine या chlorhexidine वाले gargles है, उससे आपका throat dry और होगा. So drying is going to cause a little more of an allergic response. So what you can do, take a few drops of that, put it in about a glass of water, and then use that to gargle. But please remember, friends, ki gargling is only in the upper part of the system. You can't really reach the pharynx, the lower larynx, the lower parts of the throat. So contiguous spread hai, esophagus or trachea आसपास है. For the lower, I think sipping that warm water just makes enough sense. हमारे पीएम सर ने बताया गोल्डन मिल्क, दूध के अंदर हल्दी डाल के पीजिए. वार्म मिल्क के अंदर हल्दी डाल के पिएंगे तो पूरे ट्रैक के लिए इट्स वेरी हेल्पफुल. I also want to just confirm a couple of things. Golden milk is haldi, of course. Haldi we spoke in the last video. अगर आपको वो roots जैसे जहाँ भी मिल सकते हैं, अगर ताजी हल्दी मिलती है जिसको आंबा हल्दी बोलते हैं, वो आंबा हल्दी मिलेगी तो उसको आप अचार के जैसे छोटे छोटे पीसेस करके थोड़ा सा नींबू डाल के खा सकते हैं. तो विटामिन सी की पूर्ति भी साथ में हो जाएगी. यू कैन बॉयल इट. उसमें दो वेराइटी आती है, एक व्हाइट एंड येलो. बोथ टेस्ट लिटिल डिफरेंट. व्हाइट वाले को आंबा हल्दी बोलते हैं, येलो जो अपनी नॉर्मल हल्दी होती है. बोथ आर एक्सीलेंट फॉर द मेडिकल प्रॉपर्टीज. अब थ्रोट पेन में everybody has throat pain at some point of time or the other because of post nasal drip, because of allergy, etc. Please tell us now, just quickly as you can, some ingredients which we can use at home. Say for I just have a running nose, what can I use? रनिंग नोज सबसे बेस्ट घर में सौंठ होती है. सौंठ या फिर अदरक, जिसको ड्राई अदरक बोलते हैं, तो सौंठ रहेगी और पिपरामूल. खाली दो चीज भी रहेगी, उसका पानी में गर्म करके पी लोगे तो रनिंग नोज के लिए काफी अच्छा काम. Okay, suppose I have a dry cough. अगर रनिंग नोज के साथ में ड्राई कफ है तो सेम सौंठ लीजिए, थोड़ी पिपरामूल लीजिए और उसके अंदर 2 लौंग डाल दीजिए. लौंग पीस के लिए डालेंगे तो ड्राई कफ के लिए इट्स वेरी हेल्पफुल. And suppose I have a productive cough, like I'm getting some productive cough. इफ ए प्रोडक्टिव कफ तो सौंठ लीजिए, पिपरामूल लीजिए, लौंग के बदले उसके अंदर 4 पीस काली मिर्च के घोट के डाल दीजिए. इट्स वेरी इफेक्टिव. Okay, so exactly how to prepare these, I think he has finally agreed to compile that and make a video and share his ancient knowledge with us. Definitely. So we'll be putting up this But you should video. give me some time for it to collect all the material, because I know markets are close. I have to collect the things. ये वीडियो हम Saturday को, शनिवार को हम ये वीडियो पुट अप कर लेंगे जिसमें all these what he's talking about will be explained. Giving me just 3 days, Wednesday, Thursday, Friday, that's all. Okay. Yeah, I'm giving you only 3 days. You have to do this. चलो, now moving ahead. कफ के लिए अडुसोल सिरप्स रहते हैं. अभी अडुसोल सिरप अगर नहीं मिलता तो हम क्या कर सकते हैं? अडुसोल सिरप के बदले अगर
ताजा अडुसल, अडुसल की पत्ती बाहर से उसका कलर डार्किन होता है। आपने आम के पत्ते तो देखे ही होंगे, घर पे अपन आसोपालों के तोरण बांधते हैं दीपावली में, उसी कलर के पत्ते होते हैं, लेकिन ऊपर से डार्क ग्रीन, नीचे से थोड़े लाइट ग्रीन होते हैं। बहुत इजीली अवेलेबल है। आपके घर के बाहर जो पूजा पाठ वाले जो फूल वाले बैठते हैं उनको आप बोलोगे तो अडुसल के फ्रेश पत्ते मिल जाएंगे। टेस्ट में कड़वे रहते हैं, लेकिन उनको उबाल करके खाली उनका पानी भी अगर पिया जाए, इट्स वेरी हेल्पफुल। हाँ, एंड अगेन फाइनली फॉर द थ्रोट, नोज, लंग्स एटसेट्रा, आप जितना हो सके उतना आप एसी यूज ना करें, कम करेंगे। बिकॉज उसमें क्या है, द एयर फिल्ट्रेशन व्हिच कीप्स गोइंग राउंड एंड राउंड, दैट बिकम्स थोड़ा रेलेवेंट, पर आप उसकी चिंता ज्यादा ना करें। गर्मी लग रही है, एसी चालू करो, रिलैक्स ये होके जितने थोड़ी देर। व्यूअर है उसमें से 99% एसी यूज करके बैठे हैं और एसी चला कर ही बैठे हैं। सो अभी तो फिलहाल सब एसी में ही बैठ के Don't हम आए advise हैं। them not to use the आप AC. चिंता मत कीजिए। सी एसी का द प्रॉब्लम वाज मोर इन द बिगर हॉस्पिटल्स, इट वाज मोर इन द ओटीज, वेयर हमने माउथ ओपन किया, किसी को इंट्यूबेट किया, तो वो जो इन्फेक्शन बाहर आता है ना, दैट विल कीप गोइंग ऑन इन दैट सेम सेंट्रली एयर कंडीशनड एयर, तो वो ज्यादा तकलीफ कॉज करता है। इसीलिए उसमें हेक्सा फिल्टर्स और ये सारे रिक्वायरमेंट्स है, बट दे आर इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव डियर। सो आई वुड एंड एडवाइज यू टू दैट, गर्मी लग रही है, एसी चालू करो, थोड़ी देर पंखा फास्ट चालू करके सो जाओ। तो एसी में सो कोई वांधा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत एक हर्बल टी जैसा आप घर में बना लीजिए। घर में तुलसी के पत्ते, आपके घर के बाहर तो 10 पत्ते तुलसी के तोड़ लीजिए। पुदीना घर में होगा, थोड़े से पुदीने के पत्ते ले लीजिए, थोड़ी अदरक पीस लीजिए, उसको खाली पानी में उबाल के पी लीजिए। 1 कप गरम गरम पानी पियोगे, पूरी रात एसी में सो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Excellent. So now coming to the next point, अभी खाना चला गया, now it's come to the stomach. We come to acid. Acid is one of the acidity, the pH of the stomach, और stomach और duodenum का जो system है, it is एक fascinating, एक इतना सुंदर, एक इतना उम्दा, एक इतना बढ़िया system है, पर आज unfortunately acidity नाम सुन Acidity के नाम से लोग घबराते हैं। जस्ट नेगेटिव, हर चीज उसके बारे में एक नेगेटिव तरह ही सबको हमको पेश अल्कलाइन आई करना है। है, अल्कलाइन करना है, लेकिन अल्कलाइन क्यों करना है भाई? अभी एक पेशेंट का फोन है मुझे, मेरे घर में फिल्टर लगाना है, वाटर फिल्टर की, जिसमें अल्कलाइन वाटर आता रहे। भाई साहब, अल्कलाइन वाटर 24 hours ड्रिंक अल्कलाइन वाटर इज हार्मफुल रादर देन हेल्पफुल। So explain how, what is this acidity? आप acidity के बारे में थोड़ा। एसिडी आयुर्वेदिक में जैसे वात, पित्त, कफ जो तीनों दोष बताए गए हैं, तो पित्त को अपन एसिड बोल सकते हैं। वो पित्त भी 5 प्रकार के होते हैं, पाचक, रंजक, भ्राजक। तो उसमें पाचक पित्त जो है वो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पूरा जो भी हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो जरूरी है। अगर उसको आप डाइल्यूट कर दोगे तो आपका फूड डाइजेस्ट ही नहीं होगा प्रॉपरली। नहीं, देखो एलोपैथी में 2 ही टाइप की एसिडिटी है, एक एंडोस्कोपी वाला और एक एंडोस्कोपी बिना वाला। सो दैट इज व्हाट वी नो। नो, बट दिस इज राइट। एंड गाइस, एक और रूमर चल रहा है कि पानी पियोगे तो वो वायरस स्लिप होके स्टमक में चले जाएगा और कोरोना वायरस स्टमक में मर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। इट इन फैक्ट रिसाइड्स इन द स्टमक आल्सो। डायरिया हैज बीन फाउंड इन 5% पीपल। सो कोरोना वायरस एक गैस्ट्रोएंटेरल वायरस भी है। सो नो, जस्ट एंटरिंग एसिड सिस्टम इज नॉट इनफ। अब मैं आई जस्ट गो अहेड अ लिटिल, द नेक्स्ट बिगेस्ट डिफेंस सिस्टम वी हैव, उसे पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। जो भी खून स्टमक से लेके, पेट से लेके रेक्टम तक, एनस तक, जो भी ब्लड, जो भी ये डाइजेस्ट होता है फूड में से, वो ब्लड डायरेक्टली सिस्टम में नहीं जाता, ना हार्ट के पास, ना किडनी के पास, कहीं पे भी नहीं। सारा खून इंटेस्टाइन्स में से पहले लिवर में जाता है, ताकि उसमें से टॉक्सिन्स फिल्टर हो सके। वो टॉक्सिन्स फिल्टर होने के बाद ही वो खून पूरे सिस्टम में जाके ऑक्सीजनेट होके वगैरह वगैरह हो सकता है। ये एक बहुत ही फैंटास्टिक मैकेनिज्म है, जिससे हमारी बेवकूफियां कि हम कभी कोई जहरीली चीज या कोई टॉक्सिक खा लेते हैं तो बॉडी उसे एलिमिनेट कर पाता है। लिवर हेल्थ के लिए सबसे पहले गिव अप अल्कोहल। अगर अल्कोहल लेते हैं तो वो अपने को नहीं लेना है। और अभी तो वैसे ही गिव अप कर दिया है, मिल नहीं रहा है। आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट नॉट टू ओपन एनी बार और एनी वाइन शॉप। So basically for liver health we've spoken about this multiple times in the past. Fried food मत खाओ, नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना है, Exactly. वॉकिंग करना, एक्सरसाइज, जिम जो वगैरह रहता है जो लीवर को हेल्प करने के लिए। और कुछ हर्बल अगर आपको लीवर के लिए कुछ लेना है yes, तो काली मिर्च, काला नमक और जीरा, बेकिंग इसका सोडा। बेकिंग सोडा का कॉम्बिनेशन। अब तो फिर 1 ग्राम बेकिंग सोडा ले लीजिए, 2 ml जितना नींबू का रस ले लीजिए, फ्रेश लाइम, और उसको 100 ml पानी के अंदर मिक्स करके पी लीजिए। इट्स वेरी गुड फॉर लिवर। And what about apple cider vinegar? Apple cider vinegar. it should be pure and original, because 90% apple cider vinegar is synthetic. So if you're the pure one, it's excellent. You can have 5 ml to 10 ml in 100 ml of water. It's very useful. अगर किसी को गैस ज्यादा है तो आप क्या एडवाइस करते हैं? गैस ज्यादा है तो घर में काला नमक रहता है, थोड़ी हींग रहती है, थोड़ी अजवाइन रहती है,
उसका या तो पाउडर बना के खा लीजिए या थोड़ा सा पानी बना करके पी लीजिए। छोटा बच्चा भी अगर रात को रोता है और पेट के ऊपर बार बार हाथ लगाता है तो थोड़ी सी हींग आप पेट के ऊपर लगा भी सकते हो और उसको ये हींग और काला नमक का पानी पिला भी सकते हो। इट्स टोटली हार्मलेस। एंड अगर रिफ्लक्स आ रहा है, तीखी डकारें आना, रिफ्लक्स होना, तो तीखी डकार आता है तो फिर उसका मतलब ये होता है कि हमारा पाचक जितना जरूरत है उससे थोड़ा ज्यादा बन रहा है, वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको थोड़ा हमें माइल्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपके घर में रेमेडी है। थोड़ी सी सौंफ, समझिए मैं आपको प्रोपोर्शन बना दूं, 1 ग्राम सौंफ रहती है, सौंफ का पाउडर, 1 ग्राम धनिया पाउडर, 1 ग्राम जीरा पाउडर, बस तीनों को मिक्स करके 1-1 चम्मच पानी के साथ खा लीजिए। इट्स वेरी हेल्पफुल। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो उसमें मिश्री भी मिला सकते हो और जल्दी फायदा होगा। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो मोस्टली सब्जा के बीज तो सबके घर में रहेंगे। करेक्ट। तो सब्जा के बीज, एक आधा चम्मच सब्जा के बीज या तो 1 कप पानी में ले लीजिए या 1 कप दूध में ले लीजिए। सही इफेक्टिव, रिफ्लेक्स को ठीक करने के लिए बहुत काम करता है। फैंटास्टिक। सो जस्ट मूविंग अहेड नाउ, इफ यू हैव कॉन्स्टिपेशन, एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। 50% कॉन्स्टिपेशन इज साइकोलॉजिकल। आप रोज सेम खाना नहीं खाते हैं, आप रोज सेम पानी नहीं पीते हैं, आप रोज सेम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो अगर इनकमिंग सेम नहीं है तो आउटगोइंग कैसे रोज सेम हो सकता है? सो रिलैक्स, डोंट गेट सो वर्कड अप अबाउट कॉन्स्टिपेशन, एंड इफ यू आर जेन्युइनली कॉन्स्टिपेटेड तो क्या करना हो, यू कैन जस्ट टेल अस। फॉर कॉन्स्टिपेशन इन करंट सिचुएशन, जो कोविड-19 की सिचुएशन में, I will not advise for any laxative or strong purgative because here you have to keep your body rehydrated. जितना हो सकेगा बॉडी हाइड्रेट रहेगा उतना अच्छा, तो अपने को डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। फिर भी हमारे काफी मित्र हैं कि जो सुबह बेचारे 1 घंटा ही यहाँ वहाँ चक्कर लगाते हैं, खूब चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, फिर जाके पेट साफ होता है। तो अगर जेन्युइन कॉन्स्टिपेशन है तो मेरे हिसाब से तो अभी के माहौल में सिंपल 1 चम्मच इसबगोल पानी में या दूध में ले लीजिए तो पेट साफ हो जाएगा बढ़िया। आई कंप्लीटली एग्री, बिकॉज इसबगोल इज सेफ, वो आप ले सकते हैं। और स्पेशली माय डायबिटिक पेशेंट्स, जो मेरे क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स, आई हैव अ लॉट ऑफ ब्लड प्रेशर पेशेंट्स, पोटेशियम फ्लक्चुएट होता है, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स आल्सो गेट डिस्टर्ब्ड इफ यू हैव लूज मोशंस। थोड़ा कॉन्स्टिपेशन ये माहौल में इज बेटर देन अ लिटिल लूज मोशन। और अगर आप इसबगोल भी घर में नहीं, अभी शॉप बंद है, कुछ मिल नहीं रहा है, तो आंवला घर में होता है, खाली आधे आंवले का रस भी आप निकाल के पी लोगे, दैट इज आल्सो वेरी गुड फॉर नॉर्मल पासिंग ऑफ दिस। एंड इन माय ओपिनियन, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, और अगर आप दिन में 50 स्क्वाट्स करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक मोशन आपको कॉन्स्टिपेशन होना ही नहीं चाहिए। Coming to the next point, so these are the various systems. एक बड़ा फनी क्वेश्चन आया है, डॉक्टर, कैन शीर्षासन कॉज कॉन्स्टिपेशन? No. I think अल्कोहल कहीं ना कहीं अवेलेबल है, कहीं ना कहीं। आप जिन्होंने ये, इसलिए उन्होंने जान करके वापस मुझे ईमेल में भेजा, ऐसा नहीं कि लाइव चैट में। यस, शीर्षासन से कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता। अगर आपको हो रहा है तो आप हमें पर्सनली मिले, वी वुड लाइक टू एग्जामिन यू एंड वी वुड आल्सो लाइक टू नो वेयर यू आर गेटिंग योर स्टफ फ्रॉम। मूविंग अहेड, जस्ट कमिंग टू, तो ये दीज आर द वेरियस सिस्टम्स एंड बैरियर्स जो इम्यूनिटी के हैं। Another very beautiful and important barrier to this system is we come to now finally the blood. उसमें whenever there is an antigen, wherever there is a toxin, there is a response, is usually blood mediated, lymph mediated or tissue mediated. उसमें antibodies production, cellular immunity, humoral immunity वगैरह वगैरह। I won't go into the details of that. कोई भी ड्रग ऐसा proven नहीं है जिससे वो antibody production better हो जाए या increase हो जाए या boost हो जाए। That is something which is under study since many years, और वो नहीं हो पाता। So don't obsess yourself कि ये खाने से वो हो जाएगा, वो खाने से ये हो जाएगा। The body takes care of itself. Most important to maintain this humoral, cellular and local immunity. बॉडी को डिस्ट्रैक्ट मत करो, बॉडी को इसी काम पे फोकस करने दीजिए। कंट्रोल योर प्रेशर, कंट्रोल योर शुगर, कंट्रोल योर कोलेस्ट्रॉल, कंट्रोल योर स्ट्रेस, कंट्रोल योर डाइट, कंट्रोल योर एक्सरसाइज। ये करके आप मैक्सिमली अपने आप को आप अच्छे से डाइवर्ट करके, यू कैन डाइवर्ट ऑल द अटेंशन ऑफ द बॉडी ओनली टुवर्ड्स द इम्यून सिस्टम। देयर इज वो संस्कृत श्लोक क्या है वो, जैसे इम्यूनिटी, हाउ यू कैन डिस्क्राइब अ पर्सन दैट ही इज क्वाइट इम्यून रिच और व्हाट, तो उसको तो एक बहुत बढ़िया संस्कृत का श्लोक है, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न स्वस्थ इति अभिधीयते। स्वस्थ आदमी किसको कहते हैं? इसके दोष है, वात पित्त कफ दोष बैलेंस है, सातों धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये बैलेंस है, आत्मा
प्रसन्न है, मन प्रसन्न है, आदमी हैप्पी है, तो अगर वो स्ट्रेस फ्री है तो डेफिनेटली ही इज अ हेल्थ। सो लेट मी स्टॉप यू हियर। अभी ये स्ट्रेस फ्री वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने आपको जो बताया ये इतनी सारी चीजें जो है, तो ये इतनी सारी चीजों में से नियरली 70% आपके फूड में ऑलरेडी आता है। अवेलेबल है। बाकी सारी चीजें तो आपके बॉडी में ऑलरेडी अंदर है, तो आप इतना स्ट्रेस ना लें, लीजिए। क्योंकि स्ट्रेस लेने से आई थिंक यू आर इनवाइटिंग डायबिटीज, यू आर इनवाइटिंग ब्लड प्रेशर, एंड दैट इज इन फैक्ट वीकनिंग योर इम्यून सिस्टम इवन फर्दर. So de-stressing is the most important ingredient in this You time can phase do right yoga, now. you can do pranayam, you can do exercise, you know. You can fight at home with You people, can and do them. Yes, especially with the wife, it boosts up your immune system. or you can do a telecast, with your father and son together with completely opposing or not views otherwise. And In the diet, you should have good diet for that too. yeah, but for the good diet now, see, now I think everybody is asking that. Everybody knows fruits खाना है, Correct, fruits vegetables खाना खाना है. How do we keep ourselves healthy? क्योंकि ये fruits vegetables भी तो एक problem है. कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। जब भी फ्रूट अगर लाते हैं तो कोई अगर पूरी स्किन वाला फ्रूट है तो उसका आप वॉश कर लीजिए, वॉश करके रख दीजिए साइड में। काफी लोग ऐसा करते हैं कि 12 घंटे तक उस फ्रूट को हाथ नहीं लगाते, उसके बाद में लोग हाथ में ले देते हैं। तो ऐसा फ्रूट को आप क्लीन कर लीजिए। अगर जो पील कर सकने वाले फ्रूट्स हैं उनको पील करके खाइए। हरी सब्जियां हैं, सब्जियों को भी ला करके अच्छी तरह से उन्हें वॉश कीजिए पानी के अंदर, फ्रेश पानी के अंदर। उनको भी अगर पील करके खा सकते हो तो सबसे बढ़िया। जो नॉन पीलेबल सब्जियां हैं तो उन्हें बॉईल अच्छा कीजिएगा, काफी अच्छा बॉईल करना। तो एट सर्टेन टेम्परेचर इट हेल्प्स टू barrier the Agreed. I would slightly differ here. I would say कि आप अभी अगर आप बॉम्बे, पूना, हमारे काफी बैंगलोर से, दिल्ली से भी हैं, अगर आप बड़े शहर में हैं तो आप छिलके वाला फ्रूट खाइए ही नहीं सर, बिकॉज नो मैटर व्हाट यू ट्राई वो पेस्टिसाइड्स एंड ऑल। अगर आप अच्छे so better peel them off and then you can eat. अगर आप अच्छे if you're getting direct access to some nice healthy organic fruits etc. मैंगो आएगी, मैंगो तो nobody could resist, खाना ही खाना है। yeah, so peel the fruits and eat vegetables. You can wash them and clean them. I think that's the best we can try. Baki to we can't help it. See, let me explain to you guys. Two technicians who got an infection. I spoke with the doctor yesterday. The technician was in a surgery with the physician. Both were using absolutely जो भी आप सोच सकते हैं वो गियर पहन के थे, एंड फिर भी उनको हो गया। सो कहीं ना कहीं इस चीज की जो, इस वायरस की जो इन्फेक्टिविटी है वो काफी और जगह पे भी है, काफी जगह पे, काफी फैक्टर्स पे डिपेंड है। जितना हो सके उतना इंटरेक्शन लिमिट रखें। अगर क्रीम बिस्किट नहीं मिल रहा है तो जबरदस्ती बाहर में सादे बिस्किट खा तो खाखरे गए, खाखरे तो रोटी को सेक के खा लीजिए। एंड हाइड्रेट योरसेल्फ। somebody has always asked me and कि ज्यादा पानी पीने से ज्यादा बेटर होता है। नहीं, एवरीथिंग just keep it optimum, just relax. ज्यादा मतलब इतना पूरा पानी में पीना है कि डिहाइड्रेशन नहीं हो। So you have to rehydrate yourself properly. 2.5 liters a day अच्छा है। अगर आपको पसीना हो रहा है तो तभी और पानी पी लीजिए। I mean, relax. प्रोटीन रिच फूड लेना चाहिए। प्रोटीन so protein rich food ना, protein rich everybody knows कि इसमें प्रोटीन रहता है, but there are quite a few people who have uric acid problem. यूरिक एसिड गाउट अगर है तो अपने को बड़े बड़े जो पल्सेस है वो अवॉइड करके पनीर ले लीजिए, टोफू ले लीजिए, दूध पी लीजिए, दही खाइए, छाछ पीजिए, मिल जाएगा आपको। Okay, guys, we have run 3 minutes over time, so I'm sorry आपका हमने वक्त लिया, but if you don't mind, we'll continue for 5 more minutes. We just have a couple of topics to cover. One very relevant question we have is Jetimad okay with Adusol? जेटीमद अडुसोल, yes, definitely fine, because जेटीमद एक मेडिसिन है जो नॉर्मली सबके घरों में नहीं पाई जाती। You to get it through the store, और अगर नहीं मिला तो भी चलेगा। बाकी जेटीमद definitely very good for your throat and all. अभी एक कुछ रेडीमेड आयुर्वेदिक दवाइयां भी मिलती हैं मार्केट में, तो उन रेडीमेड दवाइयों में से कोई एक दो आप बता सकते हैं विच आर यूजफुल? सबसे कॉमन तो महासुदर्शन घनवटी, ऑलरेडी आयुष डिपार्टमेंट उसे काफी प्रमोट कर चुका है। गिलोय घनवटी उसको प्रमोट कर चुका है। च्यवनप्राश तो नॉर्मली सब जगह अवेलेबल हो जाता है। ईच एंड एवरी केमिस्ट विल हैव इट। एक चम्मच च्यवनप्राश खा सकते हो। सुदर्शन घनवटी और गिलोय घनवटी लेने तो 2 गोली खा सकते हो। लिटिल एडवांस स्टेज ऑफ कोल्ड, अगर जुकाम, छींके, नाक में से पानी आता है तो त्रिभुवन कीर्ति रस, ये 2 टेबलेट ले सकते हैं 2 बार। इवन इन एलर्जिक राइनाइटिस डेफिनेटली यू कैन टेक। उसके साथ अगर खांसी है तो महालक्ष्मी विलास रस करके गोलियां आती है। ये सब चीजें कॉमनली हर केमिस्ट के आपको मिल जाएगा। वो 2 गोलियां पानी के साथ ले सकते हैं। एंड एज एन एलोपैथ लेट मी टेल यू, हमको हमेशा कहा गया है कि आयुर्वेदिक दवा लोगे तो किडनी फेल हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी दवाइयों के नाम ले रहा हूँ वो किसी में कोई भस्मा नहीं है।
basically people are very much fussy about the bhasma. The metallic So bhasma, metallic yeah. bhasma, so definitely we will not advise it to the public platform, any metallic It is like saying आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको फ्रैक्चर हो जाएगा. definitely. अभी वो अपने शीर्षासन वाले जो सर थे, अभी वो एक हाथ पे शीर्षासन करने जाएंगे तो फ्रैक्चर होगा. If you do the right exercise, nothing will happen. If you take एक the अच्छा right क्वेश्चन आया, medicine. एक I think he must be a young guy asking कि from when should I start partying with my friends at their home and then the restaurant? No, Very you good. can't. You can't. You first have to get a BMI of 19 and you have to prove it to us, and only then you'll be allowed to party. Also, one more thing which is relevant is come Rasayan Ganvati. Can we use Rasayan Ganvati? रसायन घनवटी सेम गिलोय गोखरू है ना आंवला, गिलोय जो गिलोय घनवटी आ गया उसमें गिलोय आ गया, आंवला च्यवनप्राश में आ गया, उसकी भी गोलियां गिलोय गोखरू है आंवला की रसायन घनवटी भी आती है और रसायन चूर्ण भी आता है, दैट आल्सो यू कैन टेक डेफिनेटली. Okay. उसी And- तरह लिवर के लिए एक आरोग्यवर्धन आप ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा मेडिसिन है, लेकिन अगेन उसमें थोड़ी मेटल आती है, सो वी विल एडवाइज इट. What would you advise for Rakta Shuddhi in Ayurveda in basic ingredients from home? बेसिक इंग्रेडिएंट्स होम सबसे बढ़िया है, जैसे पहले कहा गया, धनिया ले लीजिए, थोड़ा जीरा ले लीजिए, काली मुनक्का, काली किशमिश सबके घर में होगी, थोड़ी सी काली किशमिश डाल दीजिए और उसका पानी बना के ले लीजिए, रक्त शुद्धि के लिए वेरी कॉमन एंड वेरी इफेक्टिव. अगर नीम के पत्तियां मिल जाती है तो नीम की पत्ती का रस भी आप निकाल के पी सकते हो. सब्जी वाले क्या, करेला तो मिलेगा, थोड़ा करेला खाओगे, करेले का रस पियोगे, भी रक्त शुद्धि के लिए बहुत अच्छा है. जैसे क्योंकि आयुर्वेदिक में बताया कि कटु तिक्त कषाय, जो कड़वा होता है, जो कशेला होता है, वो टेस्ट खून साफ करने के लिए काफी अच्छा काम करता है. All right, guys. So I think हमने काफी कुछ कवर किया है आज. We've taken 5 minutes over time आपके लिए. Thank you very much for staying with us and through our technical difficulties. परसों 2 दिन बाद 23 अप्रैल को डॉक्टर जानवी हमें ज्वाइन करेंगी because it's conjunctivitis season also, not just flu season. And another problem which is now becoming very increasing is कि हम screen time काफी बढ़ गया है. Correct. So because of the screen time, the strain on the eyes, etc., is increased a lot. So Dr. Janvi will be giving us a few tips on how to manage that. And finally, Also orthopedic also, because cervical spondylitis continues in people like this on and phone. trigger thumb and cervical spondylosis is a very common problem right now. Finally, please understand one thing: ki control your diabetes, control your sugar, control your BP, control your cholesterol, control blah blah blah. Any Some condition, kind- don't give up any of the medication which is continued. Don't give it up. Ask physicians. We are available. We are consulting how much how much ever we can over the phone. We don't like to, but we are trying to as much as we can. Most important, guys, sleep. So You should have yeah, proper sleep. Ayurveda has now, allopathy is also catching up. We've got a lot of sleep studies now. Ayurveda has been exponenting कितने हजारों सालों से कि एसिडिटी से लेके इम्यूनिटी तक हर चीज में नींद का एक बहुत ही बड़ा रोल रहता और है. क्लासरूम में सोने वाले की तो हेल्थ और ज्यादा अच्छी होगी. अभी क्लासरूम ही नहीं ऑफिस है, में सोने अभी वाले तो जूम रहता है, तो बच्चे अपने हिसाब से अच्छा रहते हैं. So again, just to summarize this entire conversation: de-stress, laugh, sleep, exercise. take care of yourself and your family and the people around. Your body is a beautiful machine. The more you learn about the body, we have fallen in love with the body. Yes. So you will fall in love with your body and you'll appreciate कि it is so wonderful. Respect it. बड़ी बड़ी बीमारियों को फाइट करके आज हम इवॉल्व होके यहाँ पे आए हैं. आगे भी ऐसा करते जाएंगे. We must keep that willpower going. जो भी काफी ब्यूटीफुल टिप्स उन्होंने होममेड इंग्रेडिएंट्स की दी है, I will try my best to compile them with the time pertaining between hospital and visits. I will try to compile them by Saturday. हम एक वीडियो पुट अप कर देंगे सैटरडे को, तो उसमें आप even the process, explain the process, like how to grind it and 10 minutes, 12 For that minutes. you have to take help of your mom and your wife. Yeah, we will take their permission, help everything, and we'll start. Finally, we are facing technical issues every day. It's the first time we are using this technology. So please bear with us in case we are not able to put up the links on time. Another thing we can do is, yes? Okay, so I've been told there is a subscribe button will be there somewhere on the screen. I can't find it on mine. अगर आप subscribe click करते हैं तो apparently आपको immediately update आ जाएगा whenever we will put up the next video. So sorry, instead of 30 minutes again, we apologize. We've taken 40 minutes of your time. परसों शाम को मिलते हैं 9 PM again, and I promise you I will not mess up